10 منٹ آپ سے میں بات کروں گا اور آخری 2-3 منٹ ہم اللہ سے دعا کریں گے. افطاری سے پہلے یاد رکھا ہمارے بڑے کہتے تھے کہ قبولیت دعا کی سب سے زیادہ افطاری سے پہلے ہوتی ہے، چند منٹ پہلے. اس لیے جو میں اب سب کو، سارے میرے نوجوان ہیں یہاں، میرے کارکن ہیں، آپ کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ یہ ہم جدوجہد کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ آپ اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. آزادی کے لیے جب ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. جو اپنا، جس طرح ذل شاہ جب وہ اپنی جان کھوتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. اور شہید کا درجہ قرآن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. تو سب سے زیادہ نعمتیں تو اپنے پیغمبروں کو اللہ نے بخشی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شہیدوں کا رتبہ آتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو آپ میرے ساتھ مل کے یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر رہے ہیں. ایک ابھی نہیں میں ٹائم کم ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے میں ختم کروں گا اس کے بعد بے شک نعرے مارنا، لیکن پہلے میری بات آپ بڑے غور سے سنیں. اور نوجوانوں آپ نے خاص طور پہ، کیونکہ اللہ نے نا ہم سب کو، جب اس نے کہا نا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے عظیم مخلوق ہے، تو میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوں، میں اس مٹی کے انسان کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اللہ نے ایک بات کہی کہ فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے. لیکن انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلاحیت دی ہے. ہمیں بھی نہیں پتا. ہم اپنی ساری زندگی گزار جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام دیا. جو مولانا رومی کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ تو انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ انسان صرف اوپر کی پرواز تب کر سکتا ہے جب آزاد ہوتا ہے. غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہے. اور آزاد انسان کو کیا چیز کرتی ہے؟ بچہ میں اب اپنے کارکنوں سے، نوجوانوں سے آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا چیز انسان کو پرواز اوپر کرتی ہے. وہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یعنی کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے. یہ انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اور آزاد کی پرواز ہے اوپر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاور تھی دونوں طرف، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں میں انہی عربوں نے دنیا کی امامت کی، ورلڈ لیڈرز بن گئے. لا الہ الا اللہ کا میرے نبی نے ان کو دل میں مطلب سمجھا دیا، آزاد کر دیا. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہر جگہ لوگ غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. تھانہ، کچہری، پٹواری، دیہاتوں میں چلے جائیں، وہ بیچارے ان میں ہی الجھے ہوئے لوگ. یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کیوں نہیں تھانہ، کچہرا، پٹواری؟ کیونکہ انصاف ہے. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام ہوتے ہیں. جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ظلم ہوتا ہے.
ताकतवर की गुलामी करता है इंसान। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? पकड़ पकड़ के घरों में उठा लेते हैं, रात के 3 बजे जाके उनको पकड़ लेते हैं, कोई किसी केस में भी जेल में डाल देते हैं। वो अगर मुजाहरा करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, टेयर गैस करते हैं। तो क्या हमारे बाहर ये नहीं हुआ? हमारा भी उन्होंने हमें इस तरह कहा कि हम भी गुलाम हैं किसी के। हमारे घरों को भी तोड़े गए, घरों के अंदर गए, 3 बजे घुसे, दरवाजे तोड़े। कोई कानून इजाजत नहीं देता, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि हजारों पुलिस और रेंजर आके इस घर के ऊपर हमला करें। कोई कानून नहीं इजाजत देता। जंगल का कानून इजाजत देता है जिधर ताकतवर की हुक्मरानी होती है। जो हम लड़ रहे हैं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं, जिसको इंसाफ कहते हैं। जो माशरा जिधर इंसाफ नहीं होता वहां लोग गुलाम होते हैं, ये समझना है आपने। हम हर साल 23 मार्च पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि जी हम आजाद हो गए। आजाद नहीं है, छोटा सा ऊपर तबका बैठा हुआ है जो सारा मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा है। और हमारी जंग ये है कि हमने अपने आप को आजाद करना है उनसे, इंसाफ लेके। ये जंग इंसाफ और आजादी की एक ही जंग है। जो भी अल्लाह के पैगंबर आए थे, ये याद रखना, सारे अल्लाह के पैगंबर एक पैगाम था, राय हक पे खड़े थे और इंसाफ की जंग लड़ रहे थे, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के खिलाफ खड़े हुए थे, जुल्म के खिलाफ, नमरूद के खिलाफ हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा, जो रोम ने उनको ऊपर फतह किया हुआ था, इंपीरियलिज्म थी, उसके खिलाफ, और जो यहूदी जिनकी एलीट थी उसके खिलाफ हजरत ईसा खड़े हुए थे, आम इंसानों के लिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुरैश उनके जुल्म के सामने खड़े हुए थे, क्योंकि वो उनको आजादी राय नहीं दे रहे थे, उनको बोलने की आजादी नहीं दे रहे थे। हिजरत की उन्होंने, मदीना गए जिधर आजादी से अपना दीन, अल्लाह का नाम ले सकते थे। तो वो भी आज, हम भी, ये जो ऊपर चोर बैठे हुए हैं और ये जो इनके सहूलतकार हैं, हम उनसे आजादी के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो। और आप सबको सारे जब यहां से वापस जाए, एक तो पैम्फलेट्स देंगे सारों को हकीकी आजादी की, आपने तैयारी रखना है। मैंने आपको कॉल दूंगा और फिर सारे पाकिस्तान में हमने बाहर निकलना है पुरअमन तरीके से, पुरअमन तरीके से जो हमारा आइन हमें इजाजत देता है, पुरअमन तरीके से। लेकिन सारे पाकिस्तान में हम बाहर निकलेंगे अपनी आजादी की तहरीक के लिए। रोजे के साथ सुने आप। अब आखिरी चीज सुने जरा। अब नौजवानों, आपके लिए आखिरी चीज, जो आपने एक और बात सुनी, मेरी आखिरी बात, और मैं सारे नौजवानों को आप बता रहा हूं, ये कभी मेरी बात ना भूलना। माशरे में जो इज्जत है, इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। कोई जितना मर्जी तुम पैसा कमा लो, जितना मर्जी दौलत कमा लो, लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ को इज्जत नहीं मिल सकती, क्योंकि ऊपर वाला इज्जत देता है। पैसे से नहीं खरीद सकते इज्जत। और जब वो किसी को जलील करता है, उसके अमाल पे करता है, पैसा नहीं बचा सकता आपको जिल्लत से। तो जो इंसान को सबसे ज्यादा अल्लाह ने इज्जत दी, वो कौन थे?
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अच्छा जी 4 मिनट 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट रह गए। सुने जरा, उनका नबूवत से पहले भी उनका जो किरदार था उसकी बुनियाद 2 चीजों पे थी, सादिक और अमीन। एक सच्चा इंसान और इंसाफ करने वाला, ये 2 क्वालिटीज लीडर में होती है। कोई भी लीडर इज्जत नहीं कमा सकता जब तक वो सच्चा ना हो और जब तक वो इंसाफ ना करे इंसानों। तो नौजवानों, आपने ये याद रखना है, दुनिया में जिधर भी जाना है, सच बोलना आसान काम नहीं है। कई दफा आपको शॉर्टकट नजर आएगा कि झूठ बोल के मैं इधर से बच जाता हूं, लेकिन आप अपने आप को कमजोर करते हैं। जब सच बोलते हैं तो सच के लिए आपको दिलेर होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। कई दफा जो कहते हैं ना, जालिम हुक्मरान के सामने सच बोलना एक अल्लाह को सबसे ज्यादा चीज पसंद है, तो आसान नहीं है। लेकिन सच आपको ताकतवर कर देता है, सच आपको इज्जत देता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप सच बोलते हैं तो जो अल हक है वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो एक सच्चा आदमी सब पे हावी हो जाता है। मैं एक आपको बस आखिर में खत्म करता हूं क्योंकि रोजा खुलने वाला है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ी देर की बात है, मैं वर्ल्ड 11 के लिए खेल रहा था, उसमें अंग्रेज भी थे, साउथ अफ्रीका में भी थे, हम पाकिस्तानी भी थे। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही थी, तो अब वो वर्ल्ड हम सारा कुछ जीत जाते हैं। उन दिनों में बड़ी देर की बात है, बड़ा पैसा था जीतने में। तो जब हम जीत जाते हैं तो हमारे होते हैं टोटल 16 खिलाड़ी, लेकिन 11 खेलने वाले होते हैं, 16 स्क्वाड होती है। अब 11 बैठ के सोच रहे हैं कि जी अब हम ये पैसा जो हमने जीता है तो हम कैसे बांटना है। हमने वो 16 के बीच में बांटना है या हम 11 जिन्होंने मेहनत की हमारे बीच में बांटना है। अब ये सुनो जरा, 1 से शुरू होता है। मैं तो तब बहुत छोटा था, सर टीम में सबसे छोटा था, तो इधर से शुरू हुआ। जिससे पूछे वो क्या, जी हमने मेहनत किया, हमारे बीच में बांटना चाहिए। वो दूसरा क्या, हमारे क्योंकि सारों को पैसा नजर आ रहा था। एक के बाद दूसरा करते 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 एक अंग्रेज खिलाड़ी था, क्रिश्चियन था, ईमानदार था, उसके पास है। उसने कहा तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि वो 16 हमारे साथ थे, उनके अंदर क्यों नहीं बांटना। हम सबको इतनी शर्म आई, हम चुप करके बैठ गए। हमने कहा जी जो वो कहता है ठीक कहता है। एक आदमी जब सच बोलता है और वो खड़ा होता है, वो सब पे भारी हो गया। हम सब ने चुप करके कहा जी वो ठीक कह रहा है, ठीक कहता है। ये 2 चीजें याद रखना, सादिक और अमीन, इंसाफ करने वाला और सच्चा इंसान, माशरा में उसकी इज्जत होगी। दुआ करते हैं।